says very much in the one of the Shloka and Srimad Bhagavatam. Yes. It's 1.6.30 divinity of prophet. This is a very one of the famous shlokas in Bhagavatam. देवदत्तं इमं वीणा स्वररात्मनि घोषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायवान् श्राव्यम्. Now this is a conversation between Narada Muni and Vyasadeva. Okay, where Narada Muni is talking to Vyasadeva about how he got the gift of Veena. And this Veena is not an ordinary instrument, it's been gifted directly by Krishna. So, do you think it is transcendental? Yes, of course, it is transcendental because it is directly given by Krishna. And so also that is said, he's saying that I travel constantly singing the transcendental message of the glories of the Lord by reading this instrument called Veena, which is charged by transcendental sound and which was given to me by Lord Krishna. So just now today I was taking my singing classes to the students. I was talking the same verse actually to them. That Sai Bhavani which we are singing in a singing class, whatever. These are not human made. There's no manipulation. They're directly coming from Krishna down the line through different set of acharyas and learned teachers. Samaveda, which is consisting of all musical information, is down the line very nicely propagated and given to us, and now that we are getting us in a very beautiful format. And you can also see that music as a tool which is used by different acharyas and saintly people and personalities to propagate bhakti very efficiently and effectively. Why? Because it impacts and influences people at a large and also, in a very impactful way, I should say. So Chaitanya Mahaprabhu himself propagated Harinam Sankirtan. So we are also in a musical movement, all of us. Harinam Sankirtan movement. So here in the Purport Shalabha writes that how the seven singing leaders, Sari, Gama, Vadhani, Sa, Shadaja, Shabdha, Madhya, Pancham, Veda, Nisha, are actually transcendental notes and are specifically meant for transcendental songs. Okay, so now here, do you think the sentence clarifies the purpose of music? सॉरी तो देखो अभी इधर देखो सारे गामा वर्धनी सा ये जो स्वर है इधर बोला गया है कि स्पेसिफिकली दिव्य है और दिव्य गानों के लिए बने हैं, दिव्य गीतों के लिए बने हैं। तो ये दिव्य क्यों है? क्योंकि साक्षात भगवान कृष्ण से आ रहे हैं और अलग अलग प्रॉपर परंपरा सिस्टम से आ रहे हैं और आज हमको प्राप्त हुए, तो इनको हम उपयोग कर सकते हैं भगवान का गुणगान करने के लिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज जिन्हें प्रभाव बोलते हैं इस पर को और एक उदाहरण नारद जी का दे रहे हैं क्योंकि नारद स्वयं बोल रहे हैं बस व्यासदेव जी को कि नारद जी क्या करते हैं, जो भी उनको मिला है वीणा वो गान कर रहे हैं वीणा से भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो वी शुड फॉलो हिज फुटस्टेप्स, हमको उनके पदचिन्ह पर चलना चाहिए। यह आचार्य श्रेष्ठ तत्त देवे करोजना सही प्रमाण प्रमाण होते जो अनुभव है। तो हमको उनका बस उनको फॉलो करना है, उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना है बेसिकली। ओके, यस। तो क्या है संगीत का शास्त्र में या हमारे आध्यात्मिक जीवन में क्या रोल हो सकता है? तो ये जो संगीत है, द पर्पस ऑफ वैदिक साउंड, जो वैदिक साउंड है कृष्ण महामंत्र है, इसका पर्पस है स्पिरिचुअल एम्बिशन। हम पूरी तरह से इग्नोरेंस में चले गए हैं, अंधकार में चले गए हैं, सो रहे हैं ऐसे समझ सकते हैं और हमको पता ही नहीं है कि क्या हमारे लिए अच्छा है। तो वो एक डिसीज की तरह, एक रोग की तरह बोला है शास्त्रों में। वो रोग को हटाने के लिए हमको स्पिरिचुअल साउंड या आध्यात्मिक जो नाद है उसका सहारा लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है, पहले तो वो इंद्रियों को बहुत ही क्या बोलते हैं आकर्षित करता है, वो तो है, किंतु आत्मा को भी तृप्त करता है, आत्मा को एलिवेट करता है, स्पिरिट एक्शन। तो इसीलिए हरिनाम ये हमेशा हमें ये दो चीजें से इक्विप करता है। एक तो सेंसेस को एनलाइन करता है एट द सेम टाइम,
a weaknesses spirit. तो next श्रवतां सततां कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनं हृदयतस्तुल्य भद्राणि विष्णोति सुरत्सतां। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन इस श्लोक में दिया है, श्लोक का इस श्लोक में दिया है। विधि होती पूरी तरह से हृदय में जो कलमश है उसको वो धो डालता है। काम क्रोध लोभ मद मत्सर जो है वो पूरी तरह से धो डालता है। इतनी शक्ति है इसमें, इसीलिए हमको आत्मसात हमारे जीवन में करना चाहिए। और किस तरीके से करना चाहिए ये भी हमको सीखना है, क्योंकि ठीक है हमको तो पता है हरिनाम बहुत महत्व है हमारे जीवन में। आचार्य ने भी कहा है, कई संत उपनिषद में है, कई का विवर्धन है। तो ये सब तो जान लिया है किंतु उसका करने का अगर तरीका भी जान लिया तो ही हम कृपा के पात्र बनेंगे। जैसे कि आचार्यों ने परंपरागत जो हमको संदेश दिया है उस संदेश को हम अपने जीवन में उतारना कैसा है ये अगर प्रोसेस समझ लेंगे तो एक्चुअल शुद्धिकरण होगा। इसीलिए हरि नाम कैसा लेना चाहिए इसके बारे में हम 6 सूत्र में डिस्कस करने वाले हैं। कौन से 6 ऐसे सूत्र हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने इसमें एक्रोनिम बनाया है, हरि नाम, HARRNAM। ओके, so you can take away this Hari Naam at home today. Okay, easy to understand क्योंकि सूत्रों में बात जल्दी समझ में आती है और प्रैक्टिस नहीं होती। जैसे कि बच्चे को है ना वो तोड़ नहीं सकता तो उसको क्या देती है सेरेलैक का जो भी पाउडर जो होता है वो देती है ताकि वो प्री डाइजेस्टेड फूड होता है। जैसे कि प्री डाइजेस्टेड मटेरियल है आप उसको ले और है ना अप्लाई दिस इन योर ओन लाइफ। सूत्र नंबर पहला H for helplessness। अभी आप क्या देख रहे हो? कौन बताए मुझे? What are you going to see on the screen? एक मछली देख रहे हो और पानी में है किंतु पानी तो बह रहा है, थोड़ी देर में कुछ और होने आ रहा है उसके साथ, तो उसको भी पता है। लेकिन तो हमारा कुछ सिचुएशन ऐसा ही है, लेकिन हेल्पलेस। हम खुद को समझते हैं अगर मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरे पास एक गाड़ी है, खुद का घर है, अच्छा एसोसिएशन है, बस वो नॉलेज नहीं, इतना काफी नहीं है। बट इस एसोसिएशन में अगर इतना भी है तो हमको हमारी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, है ना? और वो इंटेंसिटी तभी बढ़ेगी जब हम खुद को महसूस कर सकते हैं कि हम बहुत ही हेल्पलेस है। हेल्पलेसनेस को हिंदी में क्या होता है? असहाय। अभी कुछ भी हो सकता है, ऐसा ही कुछ हमारी परिस्थिति है, ठीक है? तो कीर्तन करते समय तो हम साउंड को वाइब्रेट कर ही देते हैं, बट केवल साउंड वाइब्रेशन नहीं है, वो साउंड वाइब्रेशन के साथ साथ हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा जो चेतना है वो भी उसके साथ ही जाता है। जो भी हमारी चेतना थी उस साउंड वाइब्रेशन के साथ साथ वो चली जाएगी, नहीं? इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना है कि हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे जीवा से वो शुद्ध नहीं होना चाहिए, है ना? भगवद गीता में भी इसका उदाहरण दिया, अनुपेयम आपने ये दिया कैसी हमारी वाणी होनी चाहिए, है ना? वो हमेशा दूसरों को मदद करनी चाहिए, ऐसी वाणी होनी चाहिए, दूसरों को हर्ट नहीं करना, दूसरों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और शास्त्रों का पठन करना चाहिए। तो ऐसी वाणी होनी चाहिए। तो ये सब करना बड़े अच्छी होनी ही है, किंतु कभी कभी क्या होता है हमारे चेतना अगर अच्छी नहीं होगी तो हमारे अंदर के जो काम धर्म नहीं है तो वो ही बाहर आएंगे हमारे वाणी से, हमारे कीर्तन से। और लोग जो नए नए लोग मंदिर में आते हैं या भक्ति में आने का प्रयास करने को आते हैं अपने एसोसिएशन में, तो उनको क्या सुनाई देगा? वही सब जो हम दे रहे हैं। तो it is told that it is like a crime on the behalf of Kirtaniya if he doesn't actually sing in that right consciousness. अभी आपको आश्चर्य लगेगा, am I really taking it too hard? No, it is the truth. It is कि कैसा है कि हम लोग जब कीर्तन करते हैं तो एक संकल्प करके शुरू करना है। राधा वृंदावन चक्र गौरताई, you are my master and your servant, and please accept my service unto you, though it is very insignificant from such a insignificant person.
मैं तो एक तुच्छ जीवात्मा हूँ और मेरा इस तुच्छ सेवा को आप स्वीकार कर लीजिए। बस ये संकल्प करके जब हम बैठेंगे कीर्तन के लिए, तो इवन इफ हमारा बीच में ध्यान चला जाएगा, किंतु भगवान हमें मदद करेंगे वापस ध्यान लाने के लिए। तो ये संकल्प करके ही हमें कीर्तन या जो भी हम करते हैं एक्टिविटी, स्पेशली कीर्तन का डिस्कशन हो रहा है, तो हम उसके बारे में ज्यादा फोकस करेंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए ये एटीट्यूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एटीट्यूड्स डिसाइड्स द एटीट्यूड। इसीलिए हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, यही हम इधर समझ सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने एक उदाहरण भी दिया है कि जैसे कि एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा माँ के लिए होता है, पर माँ उसको जल्दी उसके पास जाती नहीं है एक्चुअली, क्योंकि माँ को पता रहता है उसको बस अटेंशन के लिए हो रहा है, उसके पास सब कुछ है, बस अटेंशन के लिए हो रहा है। बट कभी कभी बच्चा एकदम मतलब अभी असहाय हो गया, अभी कुछ क्या, उसको माँ ही चाहिए, उसको खिलौने भी नहीं चाहिए, तब माँ आती है, बिकॉज मदर एक्सैक्टली नोज व्हेन माय चाइल्ड नीड्स मी। तो उसी प्रकार हमको भी ऐसे ही पुकारना है, हरि नाम को पुकारना है उस असहायता के भाव से, तभी हमारे पास कृष्ण की नजर पड़ने लगी है। ओके, तो जब करते समय भी वही प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल है और कीर्तन करते समय भी वही प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल है। ओके, तो इधर हम देखते हैं कि 4.8.43 द लॉर्ड विल ऑटोमेटिकली रिवील हिमसेल्फ। ओके, हमको कुछ कष्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जब असहाय होता है भाव, तभी कृष्ण ही हमको दर्शन देंगे, है ना, अलग अलग स्वरूप में, of course, है ना, उनका जो कृपा है, उनका कटाक्ष हमको मिलने वाला है। बट आर्टिफिशियली ट्राई करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये दिया है ना। और कॉन्सेंट्रेट किस पर करना है, होली नेम पर, जो नाम है उसको सुनने को करना है, क्योंकि जब हम कीर्तन करते भी हैं उधर बैठकर, तब कीर्तन सुनना है खुद, हमारा कीर्तन, इट इज नॉट अ परफॉर्मेंस, it is an offering, it is a prayer. That prayer we should also hear, because it is for our purification, you know. And in the process of doing so, others are already getting purified. मतलब हम जब कीर्तन को बैठते हैं, हमको पहले सुनना है ताकि हम भी शुद्ध हो जाए। थैंक्स। यस, तो ये कुछ लेटर्स है जो कीर्तन जीबीसी के जो मैनुअल्स है उसमें से मैंने ये लिया है। जैसे कि भक्ति विकास स्वामी महाराज, जयदत्त स्वामी महाराज ने बहुत अच्छे अच्छे लेटर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन किया है कीर्तन के बारे में। आज मैं सब आपको बताने वाला हूँ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत बड़ा है वो डॉक्यूमेंट, तो मैंने उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उठाए हैं आपके सामने रखने के लिए। सो डोंट वरी, मैं आपको ये सब देने वाला हूँ डॉक्यूमेंट, सो यू गेट दिस होल पीपीटी विद यू। ओके, कीर्तन is also a devotional service and should be done with service attitude। सेवा भाव से हमको कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि सेवा है। प्रेम हरे कृष्णा और राधा कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, मुझे अपनी सेवा में संलग्न करो। वी शुड नॉट चैंट एंड डांस इन egotistical way to attract attention to ourselves। Consciously or unconsciously, we may try to impress others, including the opposite sex। The ethos of a rock musician as a hero attracted to women should especially be avoided। We should sing to please Krishna and for no other reason। Bhaktivedanta Swami Maharaj। तो अक्सर क्या होता है, कभी कभी हम जब कीर्तन करते हैं, तब हमें कीर्तन करते वक्त ये सोचना चाहिए कि मैं सेवा कर रहा हूँ, है ना। वो ट्यून से हम किसी को अट्रैक्ट करने का सोचते हैं, तो वो गलत भाव है। ठीक है, आप एक अच्छे गायक हो, तो उस गायक होने का फायदा यही है कि आप उस गायकी को भगवान को सेवा में लगा, भगवान की सेवा में लगा, तो ही उस गायन शैली का परफेक्शन है। The perfection of the talent is as an offering that talent to Krishna। Prabhupada says this actually। So जब हम ये करते हैं, तब हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। These are actually distraction। Absorption जब नहीं होता है, तब हम डिस्ट्रैक्शन की ओर बढ़ते हैं। इसलिए अटेंशन के बाद एब्जॉर्प्शन आता है, तो पहले सावधानी से करना है। एक भक्त को बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ कीर्तन, तो फिर एब्जॉर्प्शन एक्चुअली आ जाता है। नेक्स्ट देखो,
सत स्वरूप दास गोस्वामी महाराज बोलते हैं, and Prabhupada meditation. Srila Prabhupada slowly building up rhythm of kirtan to meditate on chanting. Srila Prabhupada on chanting. Srila Prabhupada did usually speed up the kirtan to a frenetic pitch and then stop and start again. He gradually built it up to a steady medium slow rhythm. This gave a chance to enter into the kirtan and meditate on the chanting. The melody was simple and he didn't change it. Okay? तो इससे हम क्या समझते हैं कि प्रभुपाद जब कीर्तन करते थे, आपने प्रभुपाद का कीर्तन सुना होगा उनके लेक्चर्स में, है ना? उनके लेक्चर्स में तो आधा घंटा कीर्तन होता था, फिर आधा घंटा लेक्चर, फिर आधा घंटा कीर्तन ऐसा उनका लेक्चर होता था। ओके, तो वो जब कीर्तन करते तो कैसे कीर्तन करते थे? सतस्वरूपदास गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि वो बहुत धीमे से कीर्तन करते थे, धीरे धीरे बिल्डअप करना है। तो जैसे हम, ये हमारे लिए एक शिक्षा है, हम लेना चाहिए जब हम कीर्तन को बैठते हैं। अभी आप सब लोग, ये सेंटर खुला है, बहुत सुंदर, ये तो वैकुंठ लोक की तरह ही है कि नहीं? एक नो, आज मैं एक भक्त को पूछ रहा था, प्रभु जी आप तो इतने पास रहते हैं, आपको तो नो, सो ही टोल्ड मी, नो प्रभु जी मुझे लॉटरी की टिकट लग गई, है ना? तो इट्स रियली अ लॉटरी की टिकट, है ना? बिकॉज हमको तो इतने पास में भक्त का संग मिला है, भगवान का दिव्य दर्शन, प्रभुपाद के दिव्य दर्शन और सेवा प्राप्त हुआ है, इससे बढ़कर और क्या चीज़ है? तो जब हम कीर्तन के लिए बैठते हैं तब थोड़ा धीरे से शुरू करना है कीर्तन, एकदम फास्ट से नहीं शुरू करना है, और एकदम फास्ट करना भी नहीं, धीरे से 2 बार धीरे गाएं एकदम फास्ट कर दिया, है ना? ऐसा भी नहीं करना है, धीरे धीरे उसको बिल्डअप करते जाना है। क्यों बिल्डअप करके जाना है? क्योंकि हम उसमें एब्जॉर्ब हो सके, है ना? नहीं तो क्या होता है, वी बिकम वेरी मच ट्यून कॉन्शियस और स्पीड कॉन्शियस रादर देन बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस। तो हमको कृष्ण भावनामृत रहना है ना? तो ये नहीं बनना है हमारी गति कुछ ऐसे हो जाएगी फिर तो हमको ये ध्यान रखना है, ख्याल रखना है ना? तो प्रभुपाद हमें सिखाते हैं उनके वर्तन से ही, है ना? और ट्यून्स भी थोड़े सिंपल होने चाहिए। अभी मैंने गाया वो राग भूपाली में था, जो मैंने कंपोज किया है, तो उसको इट्स अ सिंपल ट्यून, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सिंपल ट्यून है। अभी देखो अलग अलग ट्यून्स की कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग होती है। जैसे कि आप सब लोग अभी भक्ति में हो, बहुत सालों से भक्ति कर रहे हो नो, तो थोड़े थोड़े क्लासिकल ट्यून्स चलेंगे, बट कब नया भक्त वृंद होता है कभी कभी, तब उनमें थोड़े से सिंपलर ट्यून्स रखने हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो मंत्र ही पहले बात बाय हार्ट नहीं होता है 16 अक्षर का, तो उसमें आप और बड़ा क्लासिकल का ट्यून डालेंगे तो वो बोलेंगे अरे प्रभु जी आप ही गाओ, हम सुनते हैं। तो फ़ायदा क्या, मुझको ही फ़ायदा तो उसको ही फ़ायदा हो रहा है, और उसका भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि बस वो प्रेजेंटेशन कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वी हैव टू सिंग फॉर अदर्स। साधु का एक लक्षण क्या है? दया, है कि नहीं? तो ये दया का भाव सभी में होना चाहिए कि हाँ, मैं उसको कैसे बेनिफिट कराऊं जिसके लिए मैं गा रहा हूँ, है ना? हम दूसरों के लिए भी गाते हैं, भगवान के लिए तो गाना ही है, किंतु हमारा जो सेवा है कीर्तन का, कोई गलती से एक नया बंदा आ गया, है ना, मंदिर देख कर, इस्कॉन का सेंटर है, चलो आकर देखता हूँ क्या है, तो उसको उस दिन कीर्तन को बैठा और उसको आ गया कीर्तन, उसने हरे कृष्णा बोल भी दिया आपके साथ, तो उसका तो उसकी गाड़ी चल पड़ी, है कि नहीं? भक्ति की गाड़ी जो है वो चल पड़ी, है कि नहीं? ऐसे है। तो वी कैन बी अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट टू डू दैट, है ना? हम एक बहुत अच्छा निमित्त बन सकते हैं ऐसा करने के लिए। चलो, तो ये हो गया पहला सूत्र, असहाय भाव, है ना? असहाय भाव तभी आता है जब हम उस भाव में रहते हैं कि अभी मेरा कुछ होने नहीं वाला, बस मुझे यही सहारा है, बाकी कुछ सहारा नहीं है। तभी हम वो ले सकते हैं, तभी हम इन सब डिस्ट्रैक्शंस जो है ना, मुझे किसी को इम्प्रेस करना है, मुझे ये ट्यून गाना है, इससे आकर्षित नहीं होंगे, इसमें उलझेंगे नहीं हम, है ना? और एक बात, जब भी ट्यून सीखना है तो सीखो, उसका अच्छा रिहर्सल करो और फिर आ जाओ, है ना? अच्छा रिहर्सल, और एक ही ट्यून गाना 1 साल के लिए, है ना? 7 दिन में 60 ट्यून मत गाओ, बिकॉज इट इज़ वेरी, यू नो, बिकॉज हमको नहीं होगा वो करने को, क्योंकि जो गायक होते हैं वो भी एक राग, फॉर एग्जांपल एक चीज़ बता, क्योंकि मैं संगीत क्षेत्र में काम करता हूँ, तो एक क्या बता, जैसे कि एक राग प्रेजेंटेशन करना होता है सभा में, गायकों की सभा होती है एक,
तो उसमें राग प्रेजेंटेशन करते हैं हम। तो उस राग प्रेजेंटेशन करने के लिए हमको 65 डेज का रियाज करना होता है, एक ही राग का, और रोज 8 घंटे कंपल्सरी है, उसमें खंड नहीं चाहिए, 8 घंटे में खंड नहीं चाहिए। एवरी डे इन एंड आउट विदाउट फेल 8 घंटे का रियाज फॉर 65 डेज, एंड देन ही इज एलिजिबल टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। ऐसे संगीत के इसमें होता है। तो अभी देखो, इन अ मटेरियलिस्टिक रेल्म इफ पीपल कैन वर्क सो हार्ड टू जस्ट प्रेजेंट वन राग, व्हाई कांट वी हैव जस्ट गॉट वन मंत्र फॉर आवर होल लाइफ। हमको तो एक ही मंत्र मिला है, तो एक ट्यून भी हमने अगर सीख लिया एक लाइफ टाइम के लिए तो भी बहुत है। अभी ये भोपाल मैंने जो अभी एक हरे कृष्ण महामंत्र गाया, अभी पिछले मैं लगभग 7 साल से गा रहा हूँ इसको मैं, है ना, यही ट्यून बहुत जगह यही गा रहा हूँ ज़्यादातर। तो क्योंकि क्या सिंपल है और मुझे एब्जॉर्प्शन मिलता है इसमें, और लोगों को भी ईजी है गाने के लिए, तो फिर हेल्पलेसली हम पुकार सकते हैं। तो दिस इज मेन द क्रक्स बिहाइंड दिस सूत्र। नेक्स्ट, सेकंड, एप्रिसिएशन। हम सबको हरिनाम के प्रति एप्रिसिएशन होना चाहिए। एप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रशंसा। हाँ, तो प्रशंसा, पर हमारी खुद की प्रशंसा, हम क्यों प्रशंसा करते हैं हरि नाम की, ये हमको पता रहना चाहिए। ओके, क्योंकि जैसे कि रूप गोस्वामी बोलते हैं एप्रिसिएशन उनका, देखो, तुंडे तांडवली रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्णक्रोधकदम्बिनी घटयते कर्णाम्बुदेभ्यः स्पृहं चेतप्राङ्गणसङ्गिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं नो जाने जनितः कियद्भिरमृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी। तो ये बहुत उनको बोला था कि आपको हरि नाम के प्रति क्या एप्रिसिएशन है, चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला। तो उन्होंने जब ये बोला तब सब रोने लग गए थे वैष्णव, और हरिदास ठाकुर ने उनको ऐसे आलिंगन किया, चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया, और सब फूट फूट कर रोने लग गए थे, क्योंकि इतना सुंदर एप्रिसिएशन कभी किसी ने सुना ही नहीं था। बोल रहे अगर मुझे किसी ने हरि नाम लेने को कहा तो मेरा एक मुंह नहीं, मुझे लाखों मुझे मुंह चाहिए, ताकि मैं इतने बार हरि नाम गा सकूं। और जब मैं हरि नाम सुनता हूँ तो 1 या 2 कान मुझे पूरा नहीं समा पाता मैं उसमें ही, मुझे और कान चाहिए, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टंग टू चैंट दिस होली नेम। तो इतना उनको प्रिय था वो, है ना। अगर हमको बोलेंगे आज राजभोग में बड़ा गुलाब जामुन था, है ना, तो हम बोलेंगे और तो, है ना। पर वैसे हरि नाम अगर रहा तो हम क्यों मांगते हैं कि और थोड़ा, नहीं प्रभु जी और एक राउंड एक्स्ट्रा चैंट करना ही है प्रभु जी आज, ऐसे हम बोलेंगे तो कितना सुंदर है ना। केवल एकादशी के दिन नहीं, किंतु रोज थोड़ा 2 माला एक्स्ट्रा। तो दैट डिजायर व्हेन इट कम्स, देन वी शुड थिंक दैट एट लीस्ट think that we are at least having that, developing that taste. Of course we have not developed that, but at least having that desire to develop that taste. तो appreciation is very very important. चलो एक्टिविटी कर ही लेते हैं। सबके पास पेन एंड पेपर है या मोबाइल है? ओके, आप सब लोग मोबाइल में अभी राइट नाउ एवरीबडी इज गोइंग टू राइट वन एप्रिसिएशन ऑफ होली नेम। लेट अस डू दिस एक्टिविटी। ओके, सभी लोग अपने अपने मोबाइल में, अपने अपने बुक में पेन से आपको हरि नाम क्यों अच्छा लगता है ये 1 या 2 लाइन में लिखिए, या 1 सेंटेंस में, जो भी है, आपको एक पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं। ओके, चलिए, जिन्होंने ऑलरेडी लिखा और कुछ लिखिए। मुझे पता है इसमें से कोई कोई मेरा कीर्तन वर्कशॉप अटेंड किए हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी लिखा है, तो उनको मैं बोलूँगा और एक बार लिखिए कुछ नया। ओके, यू गेट 1 minute टू राइट। ओके, I will also write along with you.
ओके, रिटन। एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? किसी को बोलना है? यस, कैन वी गिव माइक इफ पॉसिबल? कॉर्डलेस माइक। क्योंकि जब हम अपना खुद का एप्रिसिएशन लिखते हैं होली नेम के प्रति, हरि नाम के प्रति, तब हमारा जप बहुत अच्छा होने वाला है। हमारा हरि नाम कीर्तन जो हम करने वाले हैं वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। और इसीलिए ये रोज़ करना चाहिए। केवल आज हमने किया क्योंकि ये कीर्तन सेमिनार है इसीलिए, किंतु ऐसा अगर रोज़ करेंगे, साल में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। तो यू विल हैव 365 रीजन्स टू चैंट होली नेम। हरि बोल, is it not? Do this as an exercise, then we will see how, or then you can glorify holy name in so much different ways, and you can inspire so many others also while you preach this same to others. आप जब इसका प्रचार प्रसार करोगे तब आप कितने कॉन्फिडेंटली बोल भी पाओगे कि क्यों हरि नाम लेना है, किसी को जप करने को देना। देखिए, आप जप करिए, ये बोलना कितना पोटेंट हो सकता है वो डिपेंड करता है कि हमारा इंटेंसिटी और हमारा उसके प्रति एप्रिसिएशन कितना है, तभी वो पोटेंसी उस पर ट्रांसफ़र होगी। ओके, यस प्रभु जी, किसको बोलना है एप्रिसिएशन? यू कैन स्टार्ट, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्ण। मुझे लगता है जब मैं जपा करता हूँ तो ये मेरा भगवान के बीच में पर्सनल टाइम मिल गया मुझे भगवान का। अमेजिंग, हरि बोल। यस, एनीबडी वुड लाइक टू शेयर मोर? यस, मुझे लगता है कि जैसे मुझ में और भगवान के बीच में ये जो पर्सनल टाइम मिल गया मुझे भगवान से। हरि बोल, वेरी नाइस। हरे कृष्ण। यस, जब हम हरि नाम लेते हैं और जब मैं लेता हूँ हरि नाम, तो मुझे एक अलग कनेक्शन डेवलप होता है, एक अलग फीलिंग होती है और एक रियलाइजेशन होता है कि वी डज नॉट बिलोंग टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। अमेजिंग, कनेक्शन कहीं और है और वहाँ पे कनेक्ट होते हैं थोड़ी देर के। बहुत बढ़िया, हरि बोल, थैंक यू सो मच। यस, एनीवन एल्स? प्लीज, यू शुड बी ग्रैबिंग द माइक। मुझे हरि नाम का ग्लोरीफाई करना है। आई शुड सी दैट नाउ। लेट्स सी हु वांट्स टू ग्लोरीफाई होली नेम। यस, Yeah, when I chant, I feel that I'm getting some satisfaction, and that's how we connect to Lord. The first stage for me is satisfaction. So that is. Thank you so much. See, we are never satisfied by the worldly pleasures, although we may get it in abundance. But a little of holy name, even once chanted, will give us eternal satisfaction. That's the secret. Thank you so much. Hare Krishna Prabhuji, that was I feel that I'm getting closer to Krishna day by day whenever I chant. बहुत सुंदर, कृष्ण के और नज़दीक जाने का एक एहसास, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभुजी, ये तो सब एक बोलिए कि सरल और मीठा ये मंत्र है जो भगवान के रूप को सबसे क्लोज लेके जाता है और आत्मिक सुख देता है। उस टाइम के लिए तो हम पूरा कनेक्टेड हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और किसी को? यस प्लीज। प्रभु जी, हैप्पीनेस मिलती है और सेटिस्फेक्शन होता है, और जब तक चैंटिंग नहीं होती तब तक लगता है लाइफ, मतलब लगता है पूरा दिन पूरा नहीं हुआ। वाह, तो लगता है बाबा जी चैंटिंग के बाद लगता है अब पूरा कंप्लीट हो गया दिन। अमेजिंग, अमेजिंग, हरी बोल। तो थैंक यू सो मच, एंड श्योर इनफ, what we can do is we can make a whiteboard here. So we may have also whiteboard. So before you go out, usually we write feedback. How was the session? But I don't want feedback for my session. You write your appreciation in one sentence there on that whiteboard. Okay? So that will be a feedback, good feedback, I should say. Okay? So let us see now what does Prabhupada wants us to say. Let's go ahead a little bit. Okay, so this sutra number 3 we'll go to now. Okay, because I have some Prabhupada letters also to show you eventually. Okay, next is sutra number 3. R, H हो गया helplessness, A हो गया appreciation, then R for responsibility. Okay, so see, we all have taken vows in front of our spiritual master Prabhupada. हमने सब ने प्रभुपाद के सामने, हमारे गुरु महाराज के सामने शपथ ली है कि मैं क्या करूँगा, हर रोज़ 16 माला ध्यान पूर्वक करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान पूर्वक।
ओके, और क्या करूँगा, प्रभुपाद के मिशन में दासानुदास बनकर सेवा करूँगा। तो ये दो भाव आने को बहुत वक्त लगता है। एक तो प्रवास है ना, इसको डरना नहीं है कि बहुत वक्त लगता है, पर ऐसे बोलकर डरना नहीं है, किंतु ये प्रवास है, तो धीरे धीरे ही होने वाला है वो प्रवास, है ना। और पहुंचना तो है उधर, बट वो पहुंचने का जो प्रोसेस, द जर्नी विच इज देयर हैज़ टू ऑल्सो बी ब्लिसफुल, कैन बी मेड ब्लिसफुल बाय टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। हम जीवन में कितने सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले चुके हैं ऑलरेडी, संसार में आए हैं, है ना, फैमिली का रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, बच्चों का रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, रिलेटिव्स का ले रहे हैं, जॉब का ले रहे हैं, कौन से बड़ी बड़ी कंपनीज़ का रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, बड़े बड़े औहदे पर है हमको बहुत सारी उपाधियाँ भी कनेक्टेड है ना, अमित मोरे और उसको एक नीचे बहुत सारी उपाधिज लिखे गए होंगे। तो ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम भौतिक जगत में तो ले रहे हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए हम लोग क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, ये हमको अपने आप से पूछना चाहिए। और यही हमको we have to remind ourselves, because every single day while chanting or while doing kirtan, that this is my responsibility, I have to do it very nicely and attentively. जब हम अपने आप को रिमाइंड करते हैं तब हम इसको बहुत बखूबी निभा सकते हैं बेसिकली। ओके, लेट्स गो लिटिल अहेड व्हाट प्रभुपाद सेज। सी द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो परंपरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग द परंपरा, जस्ट फॉलो। वी डिसएग्री विद द पर्सन्स हु चैंट दैट भजन निताय गौर राधे श्याम। नो, वी मस्ट फॉलो स्ट्रिक्टली महाजन येन गत सुपंता। We cannot manufacture simply for some worldly cheap reputation and prestige. If we manufacture something that will not help us, you know, we should not do it. Rather, we must follow Mahajana Yena Dharmasya Tattva Nihata Guhaya Mahajano Yena Gatasapanta. We must follow the Mahajanas. So you will find in the Chaitanya Charitamrita, the Kaviraj Goswami, in every chapter he begins Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Gaura Bhakta Srivas Adi Gaura Bhakta Vrinda. So this is the process basically. So Prabhupada is giving one of the lecture of CC Adi 7.5 in Mayapur on March 7th, 1974. तो प्रभुपाद इधर एम्फोसाइज कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं कि हमको परंपरा को फॉलो करना है, और वो हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब हम प्रभुपाद के आश्रय में आते हैं, है ना। जैसे कि हमें घर में रहते हैं, फॉर एग्जांपल घर में मम्मी पापा होते हैं, बड़े होते हैं, तो पहली हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनका सुनना, उनका आदर करना होता है। आदर कैसे करेंगे, जो भी वो कहते हैं वो हमें सुनना चाहिए और वैसे करना भी चाहिए। वैसे ही हम अभी प्रभुपाद के आश्रय में आ चुके हैं, किंतु आश्रय में आना मतलब क्या, उनके जो आदेश दिए गए हैं, परंपरागत आदेश है, उसको हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं ना, कि जैसे मैं बोलता हूँ आप पानी लाओ मेरे लिए, तो बोलते हाँ, नहीं पानी लाओ ना मेरे लिए, फिजिकली यू ब्रिंग इट, हाँ, बस इतना हाँ बोल के नहीं होगा ना। तो श्रवण करके उसका एक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन करना, ये फॉलोइंग परंपरा उसको बोलते हैं, है ना। फॉलोइंग परंपरा मतलब वो अपने एक्शन में दिखना चाहिए। तो कीर्तन करते वक्त भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि परंपरागत कीर्तन जो दिए हैं वही करने चाहिए। ऐसे बहुत सारे भावुक लोग होते हैं कि जो भावुक बन के कुछ तो चैंट कर देते हैं और वही परंपरा बन जाती है। इस्कॉन में भी ऐसे होने लगा है बहुत जगह, है ना। तो हमें वो नहीं लाना है, दोज डेविएशंस वी शुड नॉट ब्रिंग इन। लाइक इधर एक उदाहरण प्रभुपाद ने दिया है, भजनिताय गौर राधे श्याम, जो भी है, तो ऐसा नहीं करना है, लेकिन क्योंकि ऐसे करेंगे तो क्या, वो गलत है। जैसे कि तुलसी महारानी का एक आरती ले लो, है ना, कि फॉर एग्जाम्पल जब तुलसी आरती गाते हैं, क्या है पहला लाइन, राधा कृष्ण सेवा पाबो ये अभिलाषे, ये लाइन प्रभुपाद ने दिया है। बट कोई कोई क्या बोलता है, भज राधा कृष्ण सेवा पाबो, तो भज क्यों लाना है उसमें, वो भजा वर्ड दिया नहीं है। बट वो कोई कोई गाता है तो अच्छा लगता है, अरे वाह बहुत भजक आया, एकदम वृंदावन के मूड में गए, तो ऐसा नहीं है एक्चुअली। तो जो दिया है बस वैसा फॉलो करो तो कृपा मिलने वाली है, तो प्यूरिफिकेशन होने वाला है। ग्लोरिफिकेशन फॉर प्यूरिफिकेशन हमने बोला है, बट वो प्यूरिफिकेशन तभी ही होगा जब हम एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जिम्मेदारी लेंगे परंपरा को फॉलो करने के लिए। समझ में आ रही है बात, लाइक दैट। देन नेक्स्ट,
Vice means misuse of one's responsibilities. Definition. The prime responsibility of human being is to acquire realization of the self. This act of self-realization is not possible in any other form of life. है ना? पशु में तो पॉसिबल ही नहीं है ना? किंतु मानव जाति में, मानव जन्म में, मनुष्य जन्म में पॉसिबल है. Human form of life is the best chance for realizing this truth of life. This is the highest responsibility of a human being. Negligence of this prime duty, negligence of this prime duty of life is the root cause of all tribulations. तो जब हम नेग्लेक्ट करते हैं उस इंस्ट्रक्शंस को, तब मुश्किलें आती है. कभी कभी बोलते ना, इतना जप कर रहे फिर भी कुछ नहीं हो रहा है ना? क्यों वो ब्लिस नहीं मिल रहा है? तो कहीं कहीं तो गलतियां हो रही है, हमको जानना चाहिए. और वो क्या हो रही है, हमको आत्म परीक्षण करना चाहिए दैनंदिन जीवन में भी, है ना? वी शुड हैव सम चेक पॉइंट्स इन अवर लाइफ, इन अवर साधना भक्ति, यू नो, वेयर आई एम फ्लोइंग, यू नो, वेयर इज दैट फाउल गेम हैपनिंग. तो हमको पता चलेगा कि भाई इसको रेक्टिफाई करना है, एंड जस्ट रेक्टिफाई एंड गो अहेड. दैट्स हाउ इट इज बीन टोल्ड. So responsibility to do our sadhana, our japa, as all this will reflect in our kirtan, है ना? क्योंकि हम अगर responsibility follow परंपरा, बट परंपरा में क्या बोला है? श्रवण करो, कीर्तन करो, रोज अध्ययन करो शास्त्रों का. तो जो हम अध्ययन करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तो वैसी ही चेतना होगी, और उसी चेतना में जब हम कीर्तन करेंगे, वो चेतना उसमें जाकर बहुत लोगों को और भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, है ना? तो ये महत्वपूर्ण चीज़ हमको रखनी है, और फिर हम बचेंगे भी माया से जब हम ये करेंगे. नेक्स्ट, सूत्र नंबर 4, इंटेंशन. तो हमारा क्या इंटेंशन होना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है अगेन, है ना? इंटेंशन सेवा का, निस्वार्थ सेवा, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए जो भी हम करते हैं, है ना? इंटेंशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? भाव. अगेन भाव. हाँ, ध्येय इज गोल ना, आई गेस. इंटेंशन इज भाव ओनली, उसके पीछे का भाव. हाँ, नियत. हाँ, नियत इज राइट वर्ड. नियत क्या होना चाहिए, है ना? तो नियत क्या होना चाहिए? सेवा, निस्वार्थ सेवा. ओके. तो जैसे कि हम अभी सब लोग आ रहे हैं इधर, संघ में आ रहे, भक्तों के संघ में भागवतम सुनने के लिए, प्रसाद पाने के लिए, कीर्तन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए. तो इस सब के पीछे एक ही इंटेंशन होना चाहिए, सेवा. उसके पीछे कुछ दूसरा गोल होना नहीं चाहिए एक्चुअली. तब उसका बेनिफिट हमें बहुत प्रचुर मात्रा में मिलने वाला है ना? और बहुत ही होल हार्टेडली पार्टिसिपेट करना है ना? जब मंदिर में जाते हैं तब उसमें ये होता है कछुआ, है ना? तो उसके चारों पैर ऐसे बाहर होते हैं, बेसिकली सर भी बाहर होता है ना? बट कभी कभी आपने कछुए को देखा होगा, आपने हाथ लगा तो सब अंदर ले लेता है वो, है ना? बट वो मंदिर में रखा हुआ कछुआ रिप्रेजेंट क्या करता है कि जब हम वैष्णवों के संग में रहते हैं, भगवान के संग में रहते हैं, तब हमने परिपूर्ण रूप से, होल हार्टेडली, वी शुड जस्ट सर्व डिवोटीज. ओनली विद दैट इंटेंट वी शुड बी प्रेजेंट देयर. ऐसा उसका मतलब है. दैट इज अ आइडियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट. तो क्योंकि अगर इंद्र तृप्ति या इंद्रिय भोग के भाव से अगर हम कुछ करते हैं, तो उसका बहुत बड़ी रकम देनी पड़ती है हमको हमारे जीवन में भी, है कि नहीं? इसलिए भाव कीर्तन के समय सेवा का ही होना चाहिए. देखो, प्रभुपाद का भाव झलकता भी है और उन्होंने अपने कर्मों से दिखाया भी है कि नहीं? है ना? नेक्स्ट, सनातन गोस्वामी देखो क्या बोलते हैं. इवन बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है. If one can give up all other material desire, even if one can give up all other material desire, the desire for fame is very difficult to give up. This desire for fame, which is compared to stool, is the root cause of all anarthas. Therefore, one should carefully avoid touching the stool-like desire of fame. हरि भक्ति विलास में. तो कितना डरावना स्टेटमेंट भी है, बट नो हम इससे सब बाधित भी है. हमको किधर तो एक कोई तो मेरा सुने यार, नो कीर्तन लाइक दैट ना. सो कोई तो सुनना चाहिए मेरा कीर्तन, या कोई तो मुझे बोलना चाहिए. अभी मैं जा रहा हूँ ना,
कोई मुझे बोल नहीं रहा आज मैंने मंगल आरती गाया, कोई बोल नहीं रहा मैंने कैसे गाया, है ना। प्रभु आज का मंगल आरती सुना आपने, है ना, अच्छा था क्या है ना। आज का गुरु पूजा सुना, है ना, कैसा था, ऐसे। तो सॉरी मैंने गुरु पूजा कैसे वही बोलता हूँ, नहीं तो अपराध हो जाएगा मेरे से। बट ये भाव बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमको ये फेमस बनने का जो एटीट्यूड होता है सभी को, है ना, इसीलिए तो हम इधर आए हैं। हम कृष्ण को फेमस बनते हुए नहीं देख सकते हैं, इसलिए भौतिक जगत में 8 टपके हैं हम इधर। तो इधर हमको इधर से न जाना है, तो हमको कृष्णा को फेमस करना है। तो कीर्तन मतलब क्या, वी आर एक्चुअली मेकिंग कृष्णा फेमस। हमको भगवान को फेमस करना है, आचार्यों को फेमस करना है ना। मेरा भी एक सपना है कि आचार्यों ने जितने वैष्णव सॉन्ग्स दिए हैं उसको बहुत ही अच्छी तरह से कंपोज करके उसका एक एल्बम निकालना है मुझे, मेरा एक डिज़ायर है ना। तो देखूंगा भगवान ने अगर शक्ति दिया तो कर पाऊंगा। तो ऐसा, क्योंकि आचार्य को जब हम फेमस करेंगे तो वो टॉप 10 लिस्ट में आएंगे। नहीं तो वैसे बॉलीवुड रहता है ना टॉप 10 बॉलीवुड सॉन्ग्स, वैसे टॉप 10 आचार्य सॉन्ग्स, है ना, दिस फॉर दिस मंथ लाइक दिस। तो नेक्स्ट, Prabhupada desired a world Sankirtan party. It was Jai Shri Gauratai ki Jai, Shri Prabhupada ki Jai. It was one of the Srila Prabhupada's most ardent desires that his disciples organized a world Sankirtan party. He wrote many letters to this effect and described how these parties should be performing and the various embellishment that devotees could use on Sankirtan. These include drama, prasadam, speaking, book distribution and follow-up. In other words, the making of devotees. Mukunda Goswami ने लिखा है ये, ठीक है ना। तो प्रभुपाद के शिष्यों ने बहुत नज़दीकी से प्रभुपाद के जो इच्छाएं हैं उनको देखा है और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उसको रजिस्टर भी किया है ताकि हम भी उसको जान ले और इम्प्लीमेंट करें, है ना। अभी आप सब लोग इधर हो और आप सभी लोग संकीर्तन पार्टी में आ गए हो इस मूवमेंट में। एवरीवन इज़ लाइक अ मिलिट्री मैन ऑफ चैतन्य महाप्रभु, है ना। So the responsibility of the military man is to satisfy Prabhupada's desires, accomplish that Prabhupada's desires also in some ways. Next, सूत्र नंबर 5, नीड। ओके, तो जब भी हमको प्यास लगती है हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं ना। या अगर मुझे प्यास लगी है और आपको प्यास लगी तो पानी आपके पास चलता हुआ आ जाएगा क्या? ग्लास ऑफ वाटर जस्ट नेचुरली कम्स टू यू एंड यू जस्ट ड्रिंक इट ऑफ, नो। प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है कि नहीं। उसी तरह हम जब थर्स्टी होते हैं तब हमें पानी पीना चाहिए, पर वो थर्स्ट किसकी होनी चाहिए? भौतिक गतिविधियों की नहीं, या भौतिक वस्तुओं की नहीं, गोविंद की। देयर शुड बी अ गोविंदा नीड, है ना। अगर गोविंदा नीड नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम बहुत सारे नीड्स हैं हमारे, फिर नहीं प्रभु जी हमको लगता ही है ना, मुझे सब कुछ चाहिए, बट वो सब मिलने के बावजूद भी कभी कभी हमारा गोविंद नीड बनता नहीं है। हाँ चलो जब अभी एक घर बन गया उसके बाद करेंगे भक्ति अच्छे से, चलो एक गाड़ी आने के बाद अच्छे से जाएंगे, मंदिर पास में हो जाएगा, गाड़ी से जल्दी आना जाना होगा, हमेशा ओला पे क्यों खर्चा करना है, चलो वो, है ना। बट वो सब हो जाने के बाद वापस क्या गोविंदा नीड हो रहा है कि नहीं ये चेक करना है हम, है कि नहीं। तो हमारे लाइफ में, हम अभी जो गृहस्थ लाइफ में है नो, तो गृहस्थ जीवन में एक टेंडेंसी भी रहता है, एक्यूमुलेटिंग टेंडेंसी। एक ड्रॉवर खोल के देखो कितने सारे चीज़ें वो जो नहीं चाहिए रहती है अपने को, है ना। तो आधी चीज़ें निकाल सकते हैं आप उसमें से, है ना। जैसे कि एक लेंटिल बोलते हैं ना उसको, माळ्यावरची गोष्ट काय म्हणतो आपण त्याला, ऊपर रखते हैं, लॉफ्ट, ओके। वो लॉफ्ट पर कुछ कुछ सामान रखते हैं, है ना, और वो दिवाली में ही बाहर निकलता है एक्चुअली, है कि नहीं। और फिर नेक्स्ट दिवाली में याद आता है ये तो चाहिए, यूज़ ही नहीं किया है इसको। तो अगर आपने उस लॉफ्ट में रखा हुआ चीज़ 1 साल यूज़ नहीं किया तो वो आपके लिए बनी ही नहीं है एक्चुअली, उसको आप किसी को दान कर सकते हैं। ऑफ कोर्स seeing its utility, because if that has been used only once in a year then you can keep it, but if it's not used only for so many days then you can just give it off to someone else who needs it. तो ऐसे क्या होता है कि जब हम इतने ही सारे एक्यूमुलेशन करते हैं ना तो उसका मेंटेनेंस करने के लिए पूरा ध्यान उधर चला जाता है, और फिर क्या होता है
उधर चला जाने का हमारा ध्यान किधर होना चाहिए उधर नहीं रहता है, वही मांगे पूरी करो। बट ये मांग जो है वो हमें पूरी करनी चाहिए। द नीड ऑफ गोविंद, द नीड फॉर आत्मा। शरीर के लिए जो मांगे हम पूरी करते ही रहते हैं, वॉन्ट दिस दैट जो शरीर सुख के लिए है, किंतु आत्मिक सुख के लिए जो चाहिए वो है गोविंद। तो वो हमें भाव लाना चाहिए, वो हमें ज़रूरत पैदा करनी चाहिए। वी शुड क्रिएट दैट नीड, है ना, बाय कल्टिवेटिंग दैट अवेयरनेस। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए तो कर रहे हैं ना, किंतु जब अवेयरनेस क्रिएट होगी तब हम उसको अप्लाई भी कर सकेंगे इजीली। 1 मिनट। नेक्स्ट सूत्रा नंबर 6, लास्ट सूत्रा फॉर द डे, बट उसके बाद कुछ तो बोनस भी देने वाला हूँ मैं आपको। अलाइनमेंट। ओके, जैसे कि अभी लेक्चर शुरू होने के पहले पूरा सब सेटअप चालू था इनका, है ना। कोई लोग माइक सेटअप कर रहे थे, है ना, ये सेटअप प्रोजेक्टर सेटअप कर रहे थे, है ना, इंस्ट्रूमेंट्स माइक ट्यूनिंग हो रहा था, हारमोनियम ट्यूनिंग, वॉटेवर सितार जो भी होगा, म्यूज़िक फंक्शन में भी ऐसे तो ट्यूनिंग होता है। वैसे ही हमको अपना कॉन्शियसनेस ट्यून करना चाहिए कीर्तन के पहले। जब हम ट्यूनिंग करेंगे तब हमारा कीर्तन बहुत अच्छा होगा। बस आकर बैठ गए और शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। वी शुड बी इन द प्रेयरफुल मूड एंड एटीट्यूड, है ना। सो ट्यून इन बॉडी एंड माइंड विद द ब्राह्मणिकल कल्चर, है ना। हमारा शरीर और मन, है ना, ब्राह्मणिकल कल्चर की ओर ट्रेनिंग करना चाहिए, तो वो सत्व गुण में रहेगा। रजो और तमोगुण के ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा उसको, है ना। तो सत्व गुण में जब रहेंगे तब सात्विक चीज़ें करने का एक अच्छा ही एक सात्विकता की ओर जब जाते हैं तब उसका लक्षण क्या है, ज्ञानम एंड सुखम, है ना। तो हम वो चीज़ अच्छी तरह से करेंगे, नहीं तो बहुत हड़बड़ा से, मतलब impatiently and with all sorts of desires we'll end up doing that. फिर इंटेलिजेंस शुड बी ऑन मेडिटेटिंग लॉर्ड्स होली नेम्स, लॉर्ड्स ग्लोरीज, नाम रूप गुण लीला भगवान का स्मरण में लाना है। तब हमारी जो मति है वो शुद्ध हो जाएगी, और उसके बाद हमारी जो वाणी है उसको भगवान के सामने कीर्तन के स्वरूप में उसका गुणगान करके हमको शुद्ध करना है। तो इसको ट्यूनिंग बोलते हैं। तो ये ट्यूनिंग करना है हमें, कीर्तन करते समय भी धीरे 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 कीर्तन करते जाना है। तो श्रील प्रभुपाद जब टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में कीर्तन कर रहे थे तब एक मिनट, टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में जब कीर्तन कर रहे थे तब उन्होंने बस एक जगह बैठकर कीर्तन किया, और आज ये पूरा मूवमेंट खड़ा है इस्कॉन का। इतने सारे करोड़ों भक्त हैं, लाखों भी नहीं, करोड़ों। क्यों है? क्योंकि उन्होंने बहुत ही तीव्रता से चैंटिंग किया ही है, साथ ही साथ जो भी उनके गुरु महाराज ने कहा है वो उनके आदेश जो सुना है उस आदेशों पर उन्होंने काम किया है, He has aligned himself with the instructions of a spiritual master. Similarly, we should also be aligned with our instructions given by our Guru Maharaj, Srila Prabhupada, and then taking their mood, we should apply it in our activities, whatever we do, especially Kirtan, because that will bring that real transformation within us and around us. है कि नहीं? कुछ प्रभुपाद के लेटर्स देखते हैं हम, क्या लिखते हैं प्रभुपाद इसके बारे में, बहुत सुंदर सुंदर है ना। अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इधर डिस्कस करूंगा मैं, देख जैसे कि मृदंगम शुड नॉट बी लाउड इनफ टू ओवरपावर द साउंड ऑफ कीर्तन सिंगर एज एक्चुअल ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड इज बैरली हर्ड, है ना। तो मृदंगम का साउंड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो एकम्पनी करना चाहिए, ना कि सिंगर को ओवरपावर करके पूरा कीर्तन ही दबाना चाहिए, है ना। कीर्तन करते वक्त ये ध्यान रखना है हमें। जैम्बे हम हरि नाम संकीर्तन में यूज़ कर सकते हैं, किंतु टेम्पल हॉल में जैम्बे का आवाज़ बहुत ज़्यादा होगा, मृदंगम का आवाज़ पूरी तरह से दब जाएगा, है कि नहीं। तो जैम्बे हम बाहर यूज़ करते हैं क्योंकि बाहर एब्जॉर्ब हो जाता है साउंड, है ना, किंतु टेम्पल हॉल में और गूंज उठता है वो, तो बाकी करताल और तबला मृदंगम सुना ही नहीं देता, है कि नहीं। तो ऐसा है। फिर हारमोनियम आरती के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, हारमोनियम केवल भजन के लिए यूज़ करना चाहिए, या कीर्तन शाम का जब रहता है ऐसे यूज़ कर सकते हैं, किंतु आरती के लिए हारमोनियम यूज़ करना नहीं चाहिए। एंड
आपको अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता ही नहीं है तो ताली बजा सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू प्ले कीर्तन, है ना। झगड़ा नहीं करना ऑर्गेनाइजर्स का। मैं जब कीर्तन करने बैठा हूँ, मेरे लिए कोई अच्छा प्लेयर दे दो, है ना, और मेरे लिए कोई अच्छा प्लेयर रहता ही नहीं है, किसी को भी बिठा देते हैं, कुछ कुछ बजाते रहते हैं, नहीं, तो वो तो अपराध हो गया, है कि नहीं। तो बस कोई नहीं है तो बस आप ताली बजा के कीर्तन कर सकते हैं, वो भी भगवान स्वीकार करने वाले हैं। नेक्स्ट, although it is not offensive to dance in circle before the deities, care should be taken that our dancing is for their pleasure, you know. Dangerous steps while dancing should not be done, है ना। कभी कभी डांस में इतना एग्रेसिव हो जाता है तो गणपति डांस उससे अच्छा लगता है कभी कभी, है ना। तो वो भक्त ऐसे 2 हाथ क्रॉस करके फुगड़ी खेलते हैं, है ना, और ना ऐसा वो चक्र भी हो जाता है, मतलब सुदर्शन चक्र की तरह जो भी आता है उसको, है ना, थाड़ 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 थाड़, है ना, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो हाथ में डालकर ऐसे, है ना, एक हाथ इधर डाल के घूमते हैं, तो बाकी के जो और एक भक्त ऐसा वो ऐसे घूमता है तो सब ठाड़ 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 मार के ऐसे, तो वो दैट इज़ नॉट गुड ना। एक्चुअली भक्तों का हर्ट भी हो रहा है, बहुत सारे डर भी जाते हैं, भाग जाते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये गलत परंपराएं हम क्रिएट करते हैं, और जो आने वाले भक्त रहते हैं, कभी कभी ना ये मैंने एक्सपीरियंस किया यूथ प्रीचिंग में। मैं यूथ प्रीचिंग जब करता था कॉलेजेस में, तब ना नए बच्चे ना बहुत डरते थे, बोले ये क्या है ये हम ऐसा कभी नहीं देखे हैं, ऐसे एग्रेसिव डांस, तो वो कभी डांस ही करते नहीं थे। देन वी चेंज दैट, है ना। तो वी शुड ऑल्सो चेंज दैट, वी शुड नॉट डांस एग्रेसिवली, वी शुड डांस ग्रेसफुली। हमको नृत्य कैसे होता है, वो मन को भी सुंदर, अरे कितना सुंदर नृत्य हो रहा है ऐसा लगना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे तो तब उनको देख कर ही लोग भक्त बन जाते थे, ऐसा, है ना। तो नृत्य भी सुंदर तरीके से करना चाहिए। और जब हम कीर्तन के लिए बैठते हैं तब कुछ कुछ वर्ड्स जो होते हैं जैसे कि परंपरागत नहीं है, कि हमने कभी कभी किधर किधर सुने होंगे, कैसेट्स में या टेलीविज़न में। आजकल बहुत सारे कंसर्ट्स होते हैं, मैं भी कंसर्ट्स करता हूँ। देखो, मैं जब इस्कॉन में गाता हूँ तब मैं अलग चीज़ गाता हूँ, मेरे कंसर्ट्स बाहर भी होते हैं, लोग मुझे बुलाते हैं अलग अलग फंक्शंस में गाने के लिए, क्योंकि मेरा वो प्रोफेशन है। तो जब मैं जाता हूँ तब मैं उधर अलग चीज़ें गाता हूँ, बट ऑफकोर्स डिवोशनल सॉन्ग्स के ही कंसर्ट करता हूँ, मूवी सॉन्ग से कंसर्ट्स नहीं करता हूँ मैं अभी। तो तब उधर ना जो कुछ भी गा सकते हैं। जब इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन में हम जब रहते हैं तब हमको जय सच्चिनंदन गौर हरि ये ऑथोराइज्ड है, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ऑथोराइज्ड है, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो ये अनऑथोराइज्ड है। ओके, क्योंकि ये कभी कभी हमने सुना होगा तो जोड़ देते तो अच्छा लगता है सुनने में, बट ऑथोराइज्ड नहीं है। ओके, तो जो ऑथोराइज्ड नहीं है उसको हम नहीं गाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा शुद्धिकरण तो होने ही नहीं वाला है ना। बस हमको अच्छा लगता है, हमारे मन को अच्छा लगता है, इसलिए नहीं गाना है। नेक्स्ट, भजन निताय गौर राधे श्याम, ये मैंने बोला था, प्रभुपाद नहीं बोला है ये, है ना। भज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा क्यों बोलना है ना। बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे, ऐसा भी नहीं बोलना है। तो बोलो एंड भज ये 2 वर्ड्स प्रभुपाद ने नहीं बोले हैं। प्रभुपाद को बहुत गुस्सा आता था। एक बार ऐसे ही एक शिष्य प्रभुपाद के, यू नो, बोलो हरे कृष्णा कृष्णा, तो बोलो क्यों बोल रहा है, केवल हरे कृष्णा क्यों नहीं बोल सकते से प्रभुपाद ने दूसरे एक शिष्य को बोला था, यू स्टॉप हिम देयर, ही इज टेलिंग दैट इट्स नॉट राइट, है ना। तो जो प्रभुपाद को अच्छा नहीं लगता तो वो हमको नहीं करना चाहिए, जो उनको अच्छा है, प्रिय है, वो हम करेंगे तो उनकी कृपा हमको मिलेगी, है कि नहीं। और नो सिनेमा म्यूजिक इन द टेम्पल्स, है ना, बिकॉज टेम्पल्स आर मेंट टू बी स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन। बिकॉज सिनेमा म्यूजिक क्या होता है, उसका जो म्यूजिक बनाया गया है वो अलग उद्देश्य से बनाया जाता है ना। उसका कॉन्शियसनेस क्या होता है, पैसा कमाने के लिए, या यू नो जो भी व्यक्ति है उसको ग्लोरिफिकेशन करने के लिए होता है। भगवान को सेंटर में रखकर उसको बनाया नहीं जाता है, इसलिए वो हम इधर टाल सकते। जैसे कि हरे कृष्ण के ट्यून्स भी हम मूवी म्यूजिक के नहीं लगाने चाहिए कभी कभी, नहीं तो वही याद आ जाएंगे कृष्ण भक्तों के। हम उधर से ही आए हैं तो वापस, यू नो, वी शुड गो फ्रॉम फेमिलियर टू अनफेमिलियर, नॉट अनफेमिलियर टू फेमिलियर, है ना, ऐसे। तो आवर जर्नी शुड बी इन दैट प्योर डायरेक्शन। ओके, the essence of all instructions on Kirtan standard is that Kirtan is meant for the glorification and pleasure of Krishna and should be performed according to the parampara system. Radha Rani ki jai, Maharani ki jai is not authorized. Okay, it's folk brajavasi chant. क्योंकि कभी कभी राधाष्टमी को भी हम लोग बोलते हैं वो
है ना, बट हमको अवॉइड करना चाहिए. वी कैन जस्ट चैंट द नेम्स ऑफ द डीटीज इन दैट प्लेस. दैट्स वंडरफुल. जय राधा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र राधे. बस वो भी राधा रानी का ही ग्लोरिफिकेशन है, वो भी कृष्ण का ही ग्लोरिफिकेशन है ना. क्यों हमें कुछ तो एक्स्ट्रा करना चाहिए. अभी ये ट्रेंड इतना आ चुका है कि हमको पता ही नहीं लगता कि सही क्या है गलत क्या है इसमें. ओके, तो इसीलिए ये रेगुलेशंस बनाए गए हैं. बट बहुत इसका प्रचार प्रसार इस्कॉन कम्युनिटी में बहुत कम हो रहा है. इसलिए हमने आज ये सेमिनार रखा है कि भाई हम भी आज के बाद इसको अवॉइड करने का प्रयास करेंगे, है ना. एक्सटेंडेड मेलोडीज ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र कैन ऑल्सो बी अवॉइडेड सो दैट एवरीवन कैन सिंग. कभी कभी कुछ कुछ महामंत्र का ट्यून्स बहुत कठिन होते हैं, है ना, और उसके वो ट्यून में जो आकार का भाग होता है लंबा होता है, फिर वो भूल जाते हैं. मतलब कोई कोई लोग गा ही नहीं पाते उसको, है ना. फॉर एग्जाम्पल एक मेलोडी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे. अभी कितना बड़ा खींचा है वो, है ना. तो लोग बोलेंगे रुकना कब है. मैंने तो गा लिया, मैं गायक हूँ. जिन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखा नहीं उसके तो बात वो तो बहुत ही डर जाएगा, बोले बाप रे बाप इनको नहीं फॉलो करूंगा मैं, है ना. तो ऐसे चीजें मत गाइए, है कि नहीं, ताकि वो डिफिकल्ट है. हम लोग उसको सीख सकते हैं, बट हम लोग प्राइवेटली गा सकते हैं कृष्ण के लिए अगर गाना है तो. जब हमको सेवा दी जाती है डीटीज को सुलाने के लिए, है ना, तब ये अल्टर बंद हो जाता है, तब अंदर बैठकर भगवान को सुलाने के समय गा सकते हैं हम. भगवान मस्त हो जाएंगे एकदम, है ना. तो ऐसे तो वी कैन डू दैट. In my house, I often sing some most classical tunes where nobody is there, only I am there. Then I sing very tough tunes. Also, that is very nice thing for me sometimes. है ना. Next. ये प्रभुपाद के फोटोज बहुत ढूंढ के निकाले, बहुत सुंदर सुंदर फोटोज हैं. Using Djembe in Kirtan, I would like to bring to attention that these African drums, which have recently featured in many Kirtans, especially here in South Africa, I forget what they are called, but they certainly do have a powerful bassy sound. The problem is though, the sound of these drums drown the mridangam sounds. If mridangams are specifically made for glorifying the Lord by lending rhythm, those other drums fail to do justice. Culturally, they may help the local African people feel a sense of 23 convergence in terms of musical rhythm, but they should be left perhaps for Hari Naams or Rath Yatra, है ना. देखो इधर भी लिखा है, क्योंकि बाहर वो अच्छा लगता है सुनने को. आपने रथ यात्रा अटेंड किए होंगे बहुत सारे, हरि नाम संकीर्तन आप करते हो. अभी कोविड में नहीं खैर, बट आगे जाके जब हरि नाम संकीर्तन आप करोगे तब ज़रूर ज़ेम्बे लेकर जाना, क्योंकि फिर उसका नाद लोगों को सुनाई देता है, कोई कोई तो आया है. नहीं तो बाहर मृदंगम की आवाज़ बहुत लो हो जाती है ना. तो इसलिए ज़ेम्बे और वैम्पर उधर बहुत अच्छा लगता है. I guess that's the essence of this. Even so, when someone is leading kirtan, they naturally feel enthused when the response from the congregation is rousing. A kirtan leader will not complain too much when these drums are resounding, for they lend more support for him, in which case he would not be best to judge on kirtan aesthetics. And when they are pounded, the exotic vibration causes a mixture of big bass, African and Vedic, which can be a little bizarre sometimes, though. It can be, because उधर मिक्स्ड फीलिंग्स है प्रभुपाद की भी, क्योंकि ही इज टेलिंग दैट यू कैन अलाउ दैट, मतलब आप यूज़ कर सकते हैं बट हरि नाम में या रथ यात्रा में. अन्यथा आप टेम्पल हॉल में मृदंगम ज़्यादा बजा देंगे तो अच्छा रहेगा. लेटर टू हमसुद, अभी कीर्तन पार्टी का बहुत सुंदर लेटर है, देखो ये. माई आइडिया इज दैट एटलीस्ट 1 dozen person should form a kirtan party. 2% play mridangam, 8% play kartal, 1% play tambora, and 1 person playing melodious harmonium, and the person who will play on tambura will be lead singer. And you just have calculated what I want when you suggest that the leader should sing as I do and the others will respond. That will be very nice, but all the members of the party will be pure devotees. None of them should be outsiders. We do not want any outsiders as far as possible. Mridangam playing as you are doing at present will make you more and more expert as you go on playing. Here also I see Gaur Sundar simply by playing is improving. If all the members keep their faith in Krishna and tries to please him, certainly everyone will be pleased by hearing our kirtan. It is sure and certain when such kirtan will be demonstrated, only the harmonium player may sit and all others may stand up and join the kirtan and dancing properly dressed.
This is actually actual idea, and I hope if such kirtans are performed even on the public stage, we can sell tickets. That will be source of earning to maintain our activities. कितना सुंदर लेटर दिखा है ना हम सब दूतों को। तो ऐसा प्रभुपाद का बहुत सुंदर आशय था। देख प्रभुपाद ने इधर बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस है प्रभुपाद ने जो दिया है, तो हमको भी अभी इतना सुंदर कॉन्ग्रीगेशन हो चुका है इधर, पूरे कॉन्ग्रीगेशन में सबको ये सब सीखना चाहिए, कीर्तन सीखना चाहिए, मृदंगम सीखना चाहिए, करताल सीखना चाहिए, और फिर बहुत कीर्तन करना चाहिए ताकि हमारा शुद्धिकरण हो। हम जब कीर्तन करेंगे लोग जुड़ते जाएंगे और भगवान हमें कृपा देते जाएंगे। और इधर और एक बात बोला है, डांसिंग एंड प्रॉपरली ड्रेस्ड, हमारा ड्रेस अटायर भी वैष्णव अटायर होना चाहिए, धोती और कुर्ता कंपलसरी वाइल कीर्तन। वाई? बिकॉज फिर वैसा कॉन्शियसनेस हो जाता है। अगर हमने जीन्स डालकर कीर्तन किया तो वैसा ही कॉन्शियसनेस भी होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैसा अवॉइड करना है ना। तो स्त्रियों को साड़ी एंड पुरुषों को धोती कुर्ता, ऐसे जब हम कीर्तन करेंगे तब हमारा जो कॉन्शियस चेतना है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और तिलक लगा के प्रॉपरली पुरुषों को प्रॉपरली शेव करके आना चाहिए, बड़े बड़े बाल नहीं रखने चाहिए। ये बहुत मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। द ग्रूमिंग ऑफ मैन एंड वुमेन लाइक बी जेंटलमैन एंड जेंटल वुमेन, है ना। तब जब आपको देखेंगे लोग बोलेंगे ये वैकुंठा मैन एंड वैकुंठा वुमेन है कि नहीं, क्योंकि उनको देखकर आप कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, ये उद्देश्य है उसका, है ना। तो अटायर भी हमारा वैष्णव जैसा ही होना चाहिए, तब हम जब वो कीर्तन करेंगे तब हमको भी वैसा एहसास होगा, हमको फीलिंग आएगी वैसे। नेक्स्ट, Tambur and Mridangam in street kirtan, the chanting is very effective. Along with tambur and Mridangam played very rhythmically, let them chant, perform this musical demonstration and sell books as far as possible at feasting. Letter to Rishikesh. Next, Raghupati Raghava, is it authorized? Raghupati Raghava a political motive से किया गया था गांधी जी से, है ना। तो regarding Raghupati Raghava song, we are not concerned with this song because it had a political motive. It is not pure devotional service. Gandhi was a great statesman in the garb of a saintly person, so that the Indian population would blindly follow him. But his motive was political, and we are therefore not very interested with it. However, you can sing the first two lines, Raghupati Raghava Raja Ram, Patita Pavana Sitaram, if at all you want to sing. Okay? बिकॉज आगे वो गाने की ज़रूरत नहीं है, उसका आगे क्या है जो भी है ना, उसका ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स इन राम नवमी वी सिंग दैट, राम जन्म जब होता है ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा उसको जोड़ सकते हैं हरे कृष्णा, फिर आगे जाके, है ना, उसका पूरा गाना गाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, चैंटिंग जय सच्चिनंदन निताय गौर, चैंटिंग जय सच्चिनंदन निताय गौर एंड डांसिंग। सो दिस बेनेडिक्शन इज ऑफर्ड बाय श्री चैतन्य महाप्रभु, हु हैज वेरी काइंडली कम हियर। निताय गौर, सो यू टेक एडवांटेज ऑफ हिज मर्सी। यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट निताय गौर सुंदर, निताय गौर इज हियर। इफ यू सिंपली चैंट निताय गौर एंड डांस, देन यू विल बिकम हैप्पी। There is no difficulty. You are chanting Jai Sachinandan. This simple chanting Jai Sachinandan, Hare Krishna, this chanting and dancing, Yadner Sankirtan Prayar Yajanti, Hi Sumedasa. This is not that I am manufacturing. It is the injunction of Shastras. In this age, simply by chanting and dancing, Yagya Sankirtan and Prayar, you get complete spiritual service. So I am very glad you are taking care of Nitai Gaura so nicely. They are so nicely dressed. So continue these activities, and even if you cannot do anything, simply chant Hare Krishna. Simply chant Hare Krishna and dance and Jai Sachinand. That will make your life perfect. Okay? So प्रभुपाद कितना सुंदर तरीके से हमको समझा रहे हैं उनके लेटर में, बार बार वो रिपीट भी कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन एक ही लेटर में, है ना। डांसिंग कीर्तन एंड डांसिंग स्टेप्स, ये मैंने पहले ही बोला था, जस्ट एक रिपीट किया है इधर। डेंजरस डांसिंग इन द वेज दैट कैन कॉज इंजरी मस्ट बी अवॉइडेड। एग्जाम्पल्स, टू डिवोटीज क्लैस्पिंग हैंड्स एंड स्पिनिंग एग्रेसिवली, है ना, चक्र की तरह घूमते हैं। And this is macho sport that has nothing to do with Lord like Chaitanya Sankirtan movement. And spinning with arm outstretched, tossing children, बच्चों को लेकर गोल गोल घूमते हैं ना,
तो वो भी गलत है। कभी कभी उनको भी चक्कर आ जाता है, वो जो गोल घुमाने वाला है उसको भी चक्कर आ जाता है ना। कभी कभी दोनों गिर भी पड़ते हैं, मैंने भी देखा है वो, है ना, ऐसे। तो और पुशिंग एंड शॉविंग, थर्ड है ना, डिवोटीज डांसिंग इन A and B styles can spin off out of control and crash into other devotees. In crowded situation, devotees should be very careful, even while dancing in an authorized manner, not to bump in others, tread on their toes, poke them with the arms, or hit them with kartals. Devotees should also take special care not to jostle senior Vaishnavas while dancing. In crowded kirtanas, example Rath Yatras, devotees may form a ring around senior devotees to protect them from pushing and shoving. Okay? तो हमको बहुत अच्छी तरह से कीर्तन करना चाहिए। सर्कल्स में कर सकते हैं, बट धीरे धीरे, है ना, क्योंकि सर्कल भी बहुत जोर जोर से घूमने लगता है, फिर सब लोग बाजू में हो जाते हैं, तो वो आशय नहीं है उसका, है ना। हैव यू हर्ड समटाइम्स इन यात्रास ऑफ राधानाथ स्वामी महाराज, महाराज टेल्स मेक स्मॉल सर्कल्स, महाराज स्पीक्स इट इन द माइक, है ना, and he tells make small circles before his kirtan, and in between the kirtans also he tells sometimes, you know, because everybody is sometimes just standing and taking pictures, selfies with Maharaj or whatever, so that is not useful. Rather we can dance, but dance gracefully in the kirtan. And why gracefully? There is a reason to it. Why dance slowly? There is a reason to it. बिकॉज हमको कीर्तन करना है, डांसिंग के वक्त केवल डांसिंग पे फोकस नहीं करना है, चलो मैं कितना ग्रेसफुली नृत्य कर रहा हूँ, देखो देखो, नहीं, मैं कीर्तन भी गा रहा हूँ नृत्य के साथ साथ, वो आशय है, क्योंकि कीर्तन उधर भी तो है ना, केवल डांसिंग नहीं है, डांसिंग कीर्तन बोलते हैं, नहीं तो फिर क्लब हाउस और अपने में फर्क क्या रहा, फिर जो भी क्लब्स होते हैं बाहर के, है ना। तो इधर इस भक्ति क्लब में क्या आशय है, you can dance and enjoy singing kirtans like that. Next, just repeat the prayers by liberated souls. Sometimes we may not know how to pray also, but just repeat the prayers. वैष्णव सॉन्ग्स इतने सुंदर हैं, तो हम वैष्णव सॉन्ग केवल रिपीट कर सकते हैं एज ए प्रेयर। तो कीर्तन में कभी कभी हम वैष्णव सॉन्ग्स गा सकते हैं। हम अट्रैक्ट होते हैं बहुत अलग अलग गानों को बाहर, क्योंकि वो बहुत अच्छे म्यूजिकली कंपोज होते हैं, इसके कारण होता है, वैसे नो प्रॉब्लम अबाउट इट, यू नो, दे आर ऑल्सो डिवोशनल, बट इफ यू वांट टू रियली गेट दैट प्योरिफिकेशन इन आवर हार्ट, वी कैन एक्चुअली सिंग द सॉन्ग संग बाय आचार्यस। हम जो आचार्य ने गाए हुए वैष्णव गीत हैं, उनको अगर हम वीकली एक बार हमारे घर में या टेम्पल हॉल में, यू नो, या बस वो बुक लेकर केवल हमको अगर कीर्तन स्लॉट नहीं भी रहा हमारा, फिर भी वैष्णव सॉन्ग बुक लाना है और गौर निताय के सामने बैठकर बस अकेले में गाना है और एज ए प्रेयर ऑफर करना है, एंड देन जस्ट सी व्हाट हैपन्स, मैजिक हैपन्स। आई विल नॉट आंसर दिस आंसर और क्वेश्चन, ओके। सो वी हैव टू रिपीट द प्रेयर्स ऑफर्ड बाय द लिबरेटेड सोल्स। When we offer our prayers to Krishna, they are not ordinary words. Therefore, those who are not liberated souls, they cannot actually offer prayers. We have to repeat the prayers offered by liberated souls, not by ordinary man. Because he is not Uttama. Uttama nahi hai wo. And he is not yet on the transcendental platform. Therefore, we don't allow songs which are not sung by liberated souls. Don't hear unauthorized songs. Unauthorized songs should never be heard. Authorized song means the songs which are sung or composed by self-realized acharyas. Again वही है, थोड़ा सा extension उसका. It is an injunction in the Vaishnava regulation that unauthorized songs or statements should never be heard. The comparison is given that of milk, although very nutritious food, if it is touched by the tongue of a serpent, it acts like a poison. सांप ने जब दूध पिया है, वो दूध अगर हम पिएंगे तो जहर ही है वो। तो वैसा ही कुछ होता है बाहर के गाने भी, तो उसको हमको गाना नहीं चाहिए ज़्यादा, या नहीं गाएंगे तो अच्छा ही है ना, नहीं सुनेंगे तो अच्छा ही है ना। तो वो चीज़ इधर बोली गई है, क्योंकि कितने सुनने जैसा बहुत कुछ है वैष्णव सॉन्ग्स बुक में, इतने सारे सॉन्ग्स हैं। नेक्स्ट, जय गुरुदेव इज इम्पर्सनल। जैसे हम प्रभुपाद पूजा करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, या मंगल आरती करते हैं, या तुलसी आरती करते हैं, या नरसी आरती करते हैं। अभी मैं आरती के बारे में थोड़ा सा बोलूँगा एक्चुअली, है ना। तो ये जब आरती करते हैं, एंड में जब होता है ना, एंड में हमको जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा इतना बोल के छोड़ देना है। उसके बाद जय गुरुदेव नहीं बोलना है, क्योंकि दैट इज इम्पर्सनल। हु इज दैट गुरुदेव? नोबडी नोज हिम, वी नो ना,
दैट्स वे चैंटिंग गुरुदेव। दैट्स अदरवाइज सहजीय मेंटालिटी में आता है वो, है ना। सहजीय संप्रदाय में ऐसे बोला जाता है जय गुरुदेव, है ना, विदाउट रेफरिंग टू एनी पर्टिकुलर गुरु। इसलिए वो जीबीसी के रूल में नहीं बैठता है ना, इसलिए हमें भी उसको नहीं गाना चाहिए। और जैसे कि अभी गुरु पूजा की बात चल रही तो बोलता हूँ मैं, गुरु पूजा जब गाते हैं तब गुरु पूजा काफ़ी बड़ी है, तो हम लोग पूरा गुरु पूजा एक एक बार ही गा सकते हैं, दो बार एक एक लाइन गाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि गुरु पूजा में कभी कभी नए लोग भी आते हैं तो उनको उसका अर्थ पता नहीं होता है, यू नो। इट इज़ फॉर द डिवोटीज एंड गुरु। देन क्विकली फिनिश ऑफ गुरु पूजा एंड देन कॉन्सेंट्रेट ऑन हरिनाम। हरिनाम गुरु पूजा के वक्त हरिनाम संकीर्तन के ट्यून्स होने चाहिए, क्लासिकल ट्यून्स नहीं होने चाहिए, है ना। जैसे कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, है ना। तो ये ब्रेक किया मैंने, अभी इसको क्लासिकल में कन्वर्ट करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये क्लासिकल ट्यून है, ये सब लोग गा नहीं सकेंगे तभी, क्योंकि उधर डांसिंग ट्यून चाहिए, नए लोग आ रहे हैं उनको भी गाने को आना चाहिए, तो सिंप्लीफाई कर दो। उसी ट्यून को सिंप्लीफाई किया है हमने, है ना, हरि नाम में, ताकि वो इजीली गा सकें। और बहुत सारे ट्यून्स हैं, आपको अगर चाहिए तो मैं दूंगा आपको, मेरे पास बहुत सारे हरि नाम के ट्यून्स भी हैं। आई विल गिव इट टू हल्दर प्रिया प्रभु, यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम हिम और प्रभु जी, ओके। एंड उसके बाद जो प्रभुपाद गुरु पूजा है, एक एक बार गा के एक ही बार जय श्री कृष्ण चैतन्य गाकर फिर हरिनाम संकीर्तन कर सकते हैं। एक्चुअली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी एक बार ऐसे ही हुआ था। एक बार मैं गा रहा था, राधेश्याम रूप मेरे बाजू में खड़े थे, और मैंने शुरू किया गुरु पूजा, और कुछ मैं सब लाइन दो बार नहीं गाया, बट एक एक 2-3 लाइन दो बार गाए, और फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य चालू किया, वो भी 3 बार गाया मैंने, है ना। पर वो 3 बार गाने के बाद तो टाइम खत्म हो गया गुरु पूजा का, आधे लोग तो जाने लगे फिर प्रसाद के लिए, और फिर अभी बचा क्या, फिर वो हरे कृष्ण महामंत्र 2 बार गा के एंड करना पड़ा। तो प्रभु जी ने ओनली 2 times हरे कृष्ण महामंत्र, यू कुड हैव संग only one time na, so that Hare Krishna Mahamantra would have been more, and the people who are coming new could have heard that, you know. So then I got that lesson, you know, because he only told me that, so that was a good lesson for me also. तो ये हमें करना चाहिए इम्प्लीमेंट हमारे कीर्तनों में। मंगल आरती पर आते हैं। अभी मंगल आरती में कुछ मिस्टेक्स है जो मैं बताना चाहता हूँ, जो हम उच्चारण के तौर पर करते हैं यूजुअली। Don't go ahead because that is a bonus. ओके, तो जब हम कीर्तन करते हैं, मंगल आरती करते हैं, तब डू यू हैव दैट बुक प्रभु जी? That Kirtan book you have, na? Can you give me that? Because I'm not finding that document here now. Quickly, just need to save time. Okay. Common mistakes of Ucharana in Samsara Davagni prayers. Okay. वादित्र माद्यान नहीं है वो, वादित्र माद्यन मनसो रसेन। उक्तस्य भक्तांश चनयुंजतोपि नहीं, युक्तस्य है, उक्तस नहीं है, युक्तस्य, है ना। युक्तस्य भक्तांश चनयुंजतोपि वंदे गुरो श्री चरणारविंद, है ना। देन स्वादान्न तृप्तान हरिभक्त संगान नहीं है, द राइट वर्जन इज स्वाद्वान्न तृप्तान, है ना। स्वाद्वान्न तृप्तान हरिभक्त संगान, ऐसे है। साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रैर ने, साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रैर, है ना, उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः। अभी मंगल आरती के समय भी अंत में हमको जय प्रभुपाद नहीं बोलना है, या जय गुरुदेव भी तो नहीं बोलना है, और डीटीज के नाम नहीं लिए तो चलेगा, क्योंकि टाइम बहुत जाता है फिर मंगल आरती में। क्योंकि मैनेजमेंट में क्या होता है, टेम्पल हॉल का टाइमिंग सेट होता है, 18 मिनट्स का मंगल आरती होता है जो वर्शिप करते हैं, उसके बाद 4 मिनट का नरसिंह आरती होता है, फिर 5 मिनट का तुलसी आरती होता है, और उसके बाद फिर उनको चैंटिंग या जो भी है आगे की गतिविधियाँ करनी रहती है। तो उस टाइम स्लॉट्स में हमें ख़त्म करना चाहिए। हर एक सेंटर का, टेम्पल का अलग अलग
ये होता है टाइम्स। तो वेन एवर यू आर गिवन मंगल आरती, तुलसी आरती, नरसी आरती टू सिंग, तो आस्क द मैनेजर हु हैज़ गिवन यू दैट कितने बार गाना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र तुलसी आरती में। कोई जगह 3 बार गाकर एंड करते हैं, है नो, या यानी कानी जप पानी एक ही बार गाते हैं, है नो, या 2 बार गाने को बोलते हैं। इट्स डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द सेंटर, इज इट नॉट लाइक दैट। और हरे कृष्ण महामंत्र के जो ट्यून्स है संसार दावाग्नि में वो सेट ट्यून्स है, वही ट्यून्स गाने चाहिए, उधर कुछ अलग ट्यून्स आना नहीं चाहिए। ओके। और मंगल आरती, तुलसी आरती, नरसी आरती के जो ट्यून्स है वही ट्यून्स गाने चाहिए। और सेकंड इज हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। तो हरिहराय नेव हरिहरये नमः, बट हरि वर्ड यूजुअली यूज नहीं किया है, हरये नमः ही से यूज होता है, बट हरि हमने ऐड किया है किसी ने, तो वो आ गया है, परंपरा बन चुका है एक्चुअली, बट वो नहीं गाया तो चलेगा। एंड वापस जय प्रभुपाद। अभी डीटीज का नाम क्यों नहीं लेना है मंगल आरती में, क्योंकि वही मैं बोला टाइम जाता है, क्योंकि अभी एनवीसीसी में कितने सारे डीटीज है नो, राधा वृंदावन चंद्र जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा गौर नित्य, मतलब हम चैंट करेंगे पब्लिक चैंट करेंगे, हम चैंट करेंगे पब्लिक, तो ऐसे बहुत टाइम जाता है फिर उधर, तो इसलिए वो अवॉइड करना है हमको, ठीक है। देन लेट्स टू कम टू नरसी आरती। नरसी आरती तो बहुत कॉमेडी होता है कभी कभी, है ना, तो इसके बताता हूँ। तो नमस्ते नरसिंगाया, तो नरसिंगाया कौन है पता नहीं है, नरसिम्हा भगवान का नाम है ना, तो सिंह नहीं लगाना है, सिम्हा है, नहीं तो सिम्हा है, बोलिए सिम्हा, सिम्हा। ओके। तो संस्कृत में उच्चारण जब करते थे म कर सकते हैं अनुस्वार को उच्चारण, सिम्हा कर सकते हैं तो सिम्हा कर सकते हैं, सिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, वो गलत है। उसके बाद प्रहलाद आह्लाद दायिने, बोलिए प्रहलाद आह्लाद दायिने, हिरण्यकशिपोर्वक्षः, शिलाटङ्कनखालये। तो अभी नख, ये नख इसको बोलते हैं, संस्कृत में भी नख है, मराठी में भी नख है ना, तो नकालय नहीं है, क्योंकि नकालय बोलता है, तो नकालय मत बोलो, नख आलय को बोलो। ओके। अभी उसके बाद जब तवकर कमलवरे शुरू होता है, तब उसको देखो, अंत का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अ है, तवकर कमलवरे नखम अ, अद्भुत श्रृंगम अ, है ना, दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम, केशवधृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, है ना। कोई क्या बोलता है ना, तव कर कमलवरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम, है ना, तो आ क्यों आता है पता नहीं, क्योंकि वो नहीं आना चाहिए। ओके। दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगाम, केशव रूपा, है ना, नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, तो ऐसा वो गलत प्रोनाउंसिएशन हो गया वो संस्कृत में। तो ये सब लोकनाथ स्वामी महाराज ने बहुत एक सुंदर बुक निकाला है कि सारे आरतियों का उच्चारण में क्या क्या मिस्टेक्स होता है, कैसे रेक्टिफिकेशन करना चाहिए। वो बुक भी अवेलेबल है इस्कॉन में, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। उसमें से ही कुछ मैंने इसमें डाले हैं जो कि हम डेली में यूज़ कर सकते हैं। और एंड में हम बस बोल सकते हैं नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, है ना, सर्वभक्ति विघ्न विनाशक लक्ष्मीपति नरसिंह भगवान की जय। ये अगर बोलना नहीं आता, क्योंकि कभी कभी फास्ट बोलते समय गलती कर जाते हैं। एक दिन तो है ना, एक जन ने ऐसे ही बोल दिया था नर्सरी भगवान की जय, तो वो बहुत है ना, सब हंस पड़े थे, है ना, तो नर्सरी भगवान क्या है ना, तो ऐसा फिर मेडिटेशन टूट गया ना फिर वो। और ऐसे ही सब हंस पड़े मंगल आरती के समय मॉर्निंग में 5:30 बजे, हे भगवान, मुझे तो लगता है नरसिंह भगवान ही हंस रहे होंगे, बिकॉज ही हैड डन दैट इनोसेंट मिस्टेक, बट ऑफ कोर्स ही रेक्टिफाइड इट आफ्टरवर्ड्स। उसने बस बनाया नरसिंह भगवान की जय। और कोई कभी कभी क्या करता है, सर्वभक्ति विनाशक नरसिंह भगवान की जय, तो भक्ति विनाशक नरसिंह भगवान की जय क्या है ये? तो भक्ति का विनाश करने वाले के उद्धार करने वाले। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो वी शुड बी वेरी हैविंग द प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो बोलते हैं ना उधर,
कभी कभी पहली बार ही ना लाइफ में माइक पकड़ा होता है, ऐसे ऐसे वो पहले ही काँप रहा होता है ना, हे भगवान फिर उससे वो आरती भी भूल जाता है. तो you can rehearse and come, so don't fear, Narsingh Bhagwan is not going to attack you, okay? So he is going to getting pleased with your offering there. और सब कुछ बोलना नहीं है, कभी कभी नरहरि भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय, लक्ष्मीपति नरसिंह भगवान की जय, इतने सारे नरसिंह भगवान के नाम लेने की जरूरत नहीं है. एक बार बोला तो भी काफ़ी, हमको समझ जाएगा, भगवान को भी समझ जाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं रहता है ना. और फिर उसके बाद फिर जय प्रभुपाद, जय गौर हरि, निताय गौर हरि बोल, प्रभुपाद की जय, वैष्णव भक्त वृंद की जय. नरसिंह आरती में कुछ जरूरत नहीं है, ओके. नरसिंह आरती के बाद केवल नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय. बोनस मिले बिना जा रहे हैं कोई, देखो बोनस नहीं मिलेगा. तो तुलसी आरती, तुलसी आरती में वृंदायै, तुलसी देव्यायै, प्रियायै केशवस्य च, ऐसा उच्चारण सही है ना. दूसरा गलत है, वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च, ये गलत उच्चारण है. दूसरे विष्णु भक्ति प्रदे देवी, ओके. प्रत्यय नहीं है, टी नहीं है, डी है वो, ओके. प्रत्यय देवी नहीं है, प्रदे है. प्रदे देवी मतलब हे तुलसी महारानी आप ही मुझे भक्ति प्रदान करेंगे. और प्रत्यय देवी का अर्थ होता है हे तुलसी महारानी आप क्या मुझे भक्ति प्रदान करेगी, ऐसा अर्थ होता है उसको. तो देखो टी और डी में कितना फर्क हो जाता है, संस्कृत का कमाल है, ओके. तो एंड इसमें भी भज और ब्रज, राधा कृष्ण, ये सब नहीं डालना है. वी जस्ट हैव टू सिंग व्हाट प्रभुपाद हैज गिवन अस. एंड अगेन आफ्टर तुलसी महारानी आरती गेट्स ओवर, जय तुलसी महारानी, जय तुलसी महारानी, जय तुलसी महारानी, जय तुलसी महारानी, जय वृंदे देवी, जय वृंदे देवी, जय वृंदे. ये गाया नहीं तो भी चलेगा, ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं, बट दोनों गाए तो भी चलेगा, एक गाए तो भी चलेगा. उसके बाद फिर जय प्रभुपाद, गुरुदेव, ये सब गाने की जरूरत नहीं है, टाइम जाता है. गुरु पूजा का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है ना. तो ये कुछ आरती के ऐसा है. सो दिस ऑल कम्स अंडर अलाइनमेंट. यू सी, एक सूत्र में कितने सारे छुपे हुए रहस्य है जो प्रभुपाद ने बताया है. एंड द ओनली पर्पस बिहाइंड ऑल दिस इज, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड कम्स, यू गेट दिस, द बोनस, मर्सी, ओके. बिकॉज इफ ओनली वी एक्चुअली डू दिस एक्ट of following the kirtan as per the etiquettes and the desires of our own acharyas who love us like anything, who have bestowed their compassion upon us by giving us the beautiful sangha of Vaishnavas and the beautiful message from Srimad Bhagavat and Bhagavad Gita. So we should be eternally indebted to them by serving them back again as per their desires. Is it not true? उन्होंने हमको इतना दिया है, हम उसको रिपे तो नहीं कर पाएंगे. हम बोलते हैं ना, माँ बाप का जो ऋण है वो जन्मों जन्मों तक हम चुका ही नहीं सकते. वो एक हास्य के बराबर है. इट्स लाइक अ बिग ह्यूमर इफ समबडी सेज दैट आई एम रिपेइंग यू. सिमिलरली नोबडी कैन रिपे आचार्यज ऋण, है ना. गुरु का ऋण होता है, माता पिता का ऋण होता है, पर ये ऋण चुकाने का क्रिया कैसा होता है, उनके आदेशों का सही मायने में, सही नियति से, विथ राइट इंटेंशन से पालन करना और उनके आदेशों पर ही चलना, अलाइनमेंट, ओके. आई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे विद योर प्रेशियस टाइम गिवन, and please bless me so that I can implement all this in the Kirtan Seva which I also do. And I wish you also a very successful journey in your Krishna consciousness way ahead. If you have any comments or any mistakes which I have done, please I beg forgiveness, and you are free for comments if any. Thank you so much. Hare Krishna. Sorry I extended a lot, I guess. Half an hour more. So, fine. Thank you so much.